Hello friends, myself Rasika Pagaria from Araham Junior College. In last lecture, we started with our OCM subject. In that, we started with our first chapter. That was the principle of management, right? In that, we studied introduction, meaning, nature of principle of management and significance of principle of management. Okay, whatever you do, whatever your goals, whatever you want to achieve, there are some principles and there are some principles to achieve those goals, and management plays a very important role in achieving those goals. Nature of management principle are universally applicable, general guidelines. Principles are formed by practice and experiment, flexibility, behavior in nature, cause and effect relationship. All principles are of equal importance. These are the nature of management principle. Now, then next that yesterday we studied about the significance of management principle. They are: first is provide useful insight to manager, helpful in efficient utilization of resources, scientific decision, understanding social responsibility, encouraging research and development, helps to coordinate and control, and develops objective approach. Now, today we are going to study with the theories of management. Today we are going to study the theories of management. There are certain theories about the management. Management theories are set of general rules that guides the manager to manage an organization. ये जो theories बोलते हैं अपन management, ये क्या है? ये general rules है, general guidelines है, which helps the manager to manage an organization. Various management thinkers have introduced theories which are based on different approaches. Various management thinkers, like there are certain thinkers which have came up with the theories and which gives you the solution to the different problem. Then certain modifications were made so that every management can use this theory by adding some more innovation, some more technique and some more strategies. Like certain thinkers are like Frederick Vincent, Taylor, Mayo, Henry Fayol, etc. have introduced certain theories which are based on different approach. These theories are applicable in all types of organization. With appropriate modification, every manager can use this theory and he can come up with some innovation, technique and strategies. It means this all theories are based on modern management theories. Now next is organizational workforce and society are facing some common problems. Like every organization, every society, like if you are living in society, आपके society में भी आप नीचे जाओ meeting में तो they will come up with thousands of problems, right? Such as like centralization of authority, stress, low motivation, environmental issue, behavior problem, health problem, work-life balance, accountability, etc. ये सारे problems अपने society में रहते हैं, अपने organization में रहते हैं. These are just a common problems. Okay. Theories of management definitely provide solution to such issues. अब theories of management आप अप्लाई करोगे तो आपको हर जगह से हर चीज़ का solution मिलेगा. Now next is about the Henry Fayol administrative theory of the management. See, Henry Fayol, he is one of the इसकी theory जो है ना, ये आप BCom में भी जाओगे ना, if you go to senior college also you will come to know about this theory. He had come up with the 14 principles, and all these 14 principles plays an important role in the organization. First look about some, we will have some introduction about the Henry Fayol. Henry Fayol was a French mining. He used to work as a engineering in a French mining company, and there he succeeded in becoming a manager. He started his career as a mining engineer in a French mining company and rose to the position of chief manager director. After conducting many observations, many experiments in organization, Fayol came up with the 14 principles of management. And these 14 principles he had explained in his book, General and Industrial Administration. Due to his contribution in development of managerial thought, he is called as the father of modern management. So, Henry Fayol is called as the father of modern management. Fayol came up with 14 principles of management. This statement serve as a guidelines for decision making and management actions. Okay. Now we'll look at his 14 principles. First is
प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। अभी आप कहाँ पे भी जाओ आपको डिवीजन ऑफ वर्क तो करना ही पड़ता है। लाइक दिस वर्क विल बी डन बाय दिस पर्सन। लाइक सी इफ वी कंडक्ट सम प्रोग्राम इन द कॉलेज, व्हाट वी डू, we tell na, you will be doing volunteer, you will be doing anchoring, you will be looking after the sitting arrangement, isn't it? So what is this? This is nothing but simple a division of work. According to this principle, the work is divided into different kind. Same thing applies in big companies, big organization. Like there are certain departments like technical department, financial, commercial, security, operation, accounting and manager. It is assigned to employee as per their qualities and capability. अभी आपका कितना कैपेबिलिटी है, आपका कितना कैपेसिटी है, उस हिसाब से आपको काम मिलता है, राइट? उस हिसाब से आपको काम मिलता है, उस हिसाब से आपकी पोजीशन होती है डिपार्टमेंट में. दिस इज नथिंग बट अ डिवीजन ऑफ वर्क. It helps in improving efficiency and expertise of employees, which ultimately turns into expected productivity level. Right? आपका जितना कैपेसिटी है, अगर if I feel you can get more marks, then when your parents come, I tell them na कि he can improve more, he can work hard, he is not expected to get such marks. Why so? Because we are expecting more from you, right? क्योंकि हमको पता है आपका इतना कैपेसिटी है. जितना आपका कैपेसिटी है उतना मैं आपसे काम करवा के लूँ तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी अल्टीमेटली, राइट? और एम्प्लॉय का उसका खुद का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा. तो आपको इससे क्या होगा, इफ़िशिएंसी भी इम्प्रूव होगी, आप उस काम में ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाओगे और क्या होगा, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगा. सो दिस इज नथिंग सिंपल बट अ डिवीजन ऑफ वर्क. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. ऑथोरिटी इज द राइट टू टेक डिसीजन, राइट? एक डिसीजन लेने का आपको अधिकार रहता है. इट इज़ नेसेसरी टू गेट द थिंग. अभी जो भी है अपने को पूरा काम करके चाहिए अपना, फिर अपने को ऑर्डर किसी से भी आने दो. लाइक इफ वी गेट फ्रॉम द मैनेजमेंट लाइक यू आर सपोज टू कंप्लीट सिलेबस बाय द मंथ ऑफ अगस्त, तो हमको करना ही पड़ेगा अगस्त तक सिलेबस कंप्लीट. तो पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? इट इज़ अ teacher's responsibility to complete the syllabus, right? So authority and responsibility go hand in hand. Authority is nothing but right to take decision, and it is necessary that properly things आपके साथ सबऑर्डिनेट से आपका काम पूरा करवा के लेना है आपको. ऑथोरिटी ऑलवेज कम्स विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी. ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों साथ में चलती है. अभी मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी सिलेबस कंप्लीट करने की, राइट? तो साथ में मुझे ऑथोरिटी भी है ना, मैं कब कैसे क्या सिलेबस कंप्लीट करूँ. कि ऐसे है क्या, जैसे मुझे मैनेजमेंट बोलेगा वैसे मैं सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए? नहीं. आई हैव गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंप्लीट द सिलेबस. सेम थिंग आई हैव ऑथोरिटी कि लाइक मैं कब क्या टॉपिक लूँ, कब क्या बच्चों को पढ़ाऊँ, राइट? सो ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलवेज कम टुगेदर. इफ द मैनेजर इज गिवन ऑथोरिटी टू कंप्लीट द टास्क विद इन अ गिवन टाइम, ही शुड बी गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी if he does not complete the work in the given time, right? मैं उसको ऑर्डर दे दूँ कि इतने वक्त में मुझे काम ख़त्म चाहिए, राइट? टू मैनेजर उसको आज मैंने अथॉरिटी दे दी कि तू इन लोगों से इतना इतना काम कंप्लीट करवाने का. नहीं काम हुआ तो यू विल फेस दिस प्रॉब्लम. तो क्या हुआ, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों उसको ही संभालनी है. मैनेजर शुड हैव प्रॉपर अथॉरिटी टू टेक मैनेजरल डिसीजन ऑन हिज ओन इन रिस्पेक्ट टू द गोल. अब वो अचीव करना है, इतना काम तुझे टाइम पे करना है, तो तुझे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अथॉरिटी भी है कि इन लोगों से इतना ऐसा काम करवा के लेने. ये अथॉरिटी है और टाइम पे कंप्लीट करना ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है. दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजर. ओके. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन. अकॉर्डिंग टू फ्यूअल, डिसिप्लिन इज द इसेंशियल थिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. लाइक कौन किसका डिसीजन ओबे करेगा? हु इज गोइंग टू ओबे हुज डिसीजन? नो वन नोज. इन एन बिग ऑर्गेनाइजेशन आपके ऊपर कोई ना कोई तो रहता है, राइट? अभी मीटिंग रहता है. सी इन कॉलेज वी हैव स्टाफ मीटिंग, राइट? देन वट एवर आवर सर टेल्स, लाइक आतिश सर टेल्स, शैलेश सर टेल्स, वी हैव टू ओबे दैट, राइट? बट वट अबाउट द नॉन टीचिंग स्टाफ? वट अबाउट आवर क्लर्क? Clerk are supposed to obey us as well as the non-teaching staff and as well as the management, right? They are supposed to obey.
Are we supposed to obey the non-teaching staff and clerk and all? No. If अगर हमारा रिलेटेड मैटर हो, अगर स्टाफ का कुछ प्रॉब्लम हो तो वी विल सॉल्व आवर सेल्फ. नॉन टीचिंग के प्रॉब्लम हम तक आते हैं क्या? नहीं. उनको ऊपर से डिसीजन मिलते हैं नॉन टीचिंग स्टाफ को, दे विल ओबे दैट डिसीजन, दे वोंट लुक फॉर अस, राइट. सो डिसिप्लिन मीन्स कौन किसका सुनेगा, हु विल ओबे हुज ऑर्डर, दैट इज वेरी क्लियर. अगर हर कोई अपने को, हर कोई मुझे ऑर्डर दे देगा, हर कोई स्टाफ को ऑर्डर देगा, नॉन टीचिंग स्टाफ आके बोलेगा यू डू दिस वर्क, हाँ, आतिश सर विल कम एंड टेल यू डू दिस वर्क, शैलेश सर विल कम एंड से यू डू दिस वर्क, देन व्हाट विल हैपन, we will be getting confused. किसका सुनना चाहिए, किसका पहला काम करना चाहिए, एंड वी हैव आवर ओन वर्क ऑल्सो टीचिंग का, तो हम लोग क्या करेंगे? सो एवरीथिंग विल बी मेस्ड अप. डू यू थिंक दिस इज फ्रूटफुल फॉर द मैनेजमेंट? Do you think this work environment would be healthy for you, for us? No, this environment won't be healthy. This environment, in that environment, no one will be able to work. There will be only frustration in the work. So there should be a principle. So the principle of discipline is applied here. Discipline helps to achieve the goal in the organization. Good discipline is the result of effective leadership, right? अगर proper discipline रहे, अभी अपने को क्या है? Now we are supposed to obey whatever we get order from Shailesh sir and Atish sir. We are supposed to obey, right? Whatever problem if we are facing with our lectures and all, we are supposed to tell them. They will give us the solution. We sit, we solve our own problem, right? अगर हम लोग कि सर को जाके कुछ बोलेंगे नहीं तो सर को पता भी नहीं चलेगा. And if sir has some problem with us, he calls and he tells us, right? So we are supposed to obey we know whom we are supposed to obey. Good discipline is the result of effective leadership. There must be a clear understanding between the management and workers regarding the organizational rules. Organization के certain rules रहते हैं, उसका clear understanding होना चाहिए, right? उसका अगर clear understanding हो तो हमको भी काम करने में मज़ा आएगा, and even management will be bit relaxed कि no, he knows कि बाबा his staff is working properly, he doesn't have to put much, he doesn't have to push, बहुत ज़्यादा उनको इंटरफियर करने की ज़रूरत नहीं है. he knows कि अब हमको हमारे रूल्स पता है, हमको ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स पता है, एंड वी कांट गो बियॉन्ड द रूल्स. लाइक अभी हम लोग क्लासरूम में मोबाइल नहीं लेके आ सकते. टीचर्स आर नॉट अलाउड टू टेक मोबाइल इन द क्लासरूम व्हेन दे आर गोइंग फॉर द लेक्चर्स, राइट? वी नो दिस रूल. सो डू वी ब्रिंग मोबाइल इन द क्लासरूम? नो. Even students are allowed. Even students are supposed to switch off their mobile when they enter the classroom, right? But I know you don't follow that. But we teachers are supposed to follow that. There must be a clear understanding regarding the rules in the organization. Next is the principle of unity of command. Each member of the organization should receive order from only one superior. एक ही सुपीरियर से हमको ऑर्डर मिलना चाहिए. जैसे आतिश सर एकेडमिक ईयर देखते हैं एंड फाइनेंशियल एवरीथिंग इज सीन बाय द शैलेश सर, राइट? तो एकेडमिक में जो भी प्रॉब्लम है हमको, लाइक रिगार्डिंग लेक्चर्स, रिगार्डिंग आवर टाइम टेबल, रिगार्डिंग आवर टाइमिंग, रिगार्डिंग आवर शेड्यूल्स एंड एवरीथिंग, वी आर सपोज टू रिपोर्ट टू आतिश सर, राइट? सो वी नो यूनिटी ऑफ कमांड. दिस प्रिंसिपल हेल्प्स इन मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट एंड सॉल्विंग डिस्प्यूट अमॉन्ग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन. इससे क्या होता है, मैं बोल नहीं सकती ना, मेरे को शैलेश सर हैज़ गिवन मी द ऑर्डर कि ये लेक्चर मैं नहीं लूँगी बोल के. आई कैंट से दैट बिकॉज शैलेश सर का वो पार्ट है ही नहीं. ये रोल इज टू बी, ये जो भी रोल है ये आतिश सर का रोल है. वी आर वेरी क्लियर विथ इट, राइट? सो वी नो अगर हमारे लेक्चर्स क्लैश हो रहे हैं तो we are supposed to report to Atish sir, not to the Shailesh sir. So this is very clear idea in the organization. It also helps in avoiding confusion. तो इसमें क्या होता है, कोई confusion होता ही नहीं है. If an employee receives command from more than one authority, he will get confused and will not be able to take decision about whose order should be followed. This is a wrong approach. तो अभी मेरे को हर कोई ऑर्डर देगा. If the staff gets order from Atish sir, Shailesh sir, स्वराज सर, सबसे ऑर्डर आने लगेंगे तो क्या होगा, हमको पता ही नहीं चलेगा किसका फॉलो करना चाहिए किसका नहीं, एंड एवरीथिंग विल बी मैस्ड अप. सो देयर शुड बी अ यूनिटी ऑफ कमांड. नाउ नेक्स्ट फिफ्थ प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन.
दिस प्रिंसिपल सेज दैट देयर शुड बी अ वन हेड एंड वन प्लान इन द ऑर्गेनाइजेशन. एक ही ऑर्गेनाइजेशन में हेड होगा और एक ही प्लान होगा. ईच ग्रुप शुड हैव द सेम ऑब्जेक्ट. एक प्लान है, उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है. जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट है, राइट, वो क्या करेगा? फाइनेंस डिपार्टमेंट, उस certain one project is given, on that finance department will work, HR department will work, sales department will work, marketing department will work. हर डिपार्टमेंट वो एक गोल अचीव करने के लिए काम करेगा. ऐसा नहीं कि बाबा फाइनेंस का गोल अलग दे दिया, मार्केटिंग का गोल अलग दे दिया, नहीं. एक हेड होगा और वो सबको एक कॉमन गोल देगा और वो सब हमको मिलके वो गोल पूरा अचीव करना है. दैट इज नथिंग बट अ प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. नाउ नेक्स्ट प्रिंसिपल इज अ principle of subordinate of individual interest to organizational interest. According to this principle, the interest of individual must be less than the interest of the organization. इसमें आपको खुद का इंटरेस्ट कम होना चाहिए. You should be looking for the organization interest. You should be looking for the organizational goal. खुद का गोल पूरा करने का नहीं देखना है आपको हमेशा. You should be looking for how you achieve the organizational goal. उस हिसाब से आपको आपके डिसीजन लेने हैं. मैनेजर शुड ऑलवेज द कंसिडर, मैनेजर ने भी है ना हमेशा कंसिडर करना चाहिए पूरा ग्रुप का डिसीजन कर, पूरा ग्रुप का फ़ायदा कैसा होगा, पूरे ग्रुप को कैसे बेनिफिट होगा, हाउ माई ग्रुप विल बी मोर इन्वॉल्व इन अचीविंग द टास्क rather than looking for a single employee's goal. Similarly, the employee should protect the interest of the organization first and then his personal interest. पहले ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करने का देखो, फिर आप खुद का इंटरेस्ट देखो. फॉर एग्जाम्पल, अभी इन एवरी गेम प्लेयर्स ऑलवेज थिंक अबाउट विनिंग द मैच, राइट. व्हेन यू सी अ क्रिकेट, व्हाट वी सी इन क्रिकेट, वी सी कि लाइक हाउ इंडिया विन्स द मैच. ऐसा देखते हैं क्या? अरे यार सचिन ने ही मैच जिताना चाहिए, अरे यार धोनी ने ही मैच जिताना चाहिए. डू वी से दैट? नो. व्हाट वी से, इंडिया शुड विन द मैच, राइट. अगर मैच पूरी इंडिया अगर मैच एक इंसान की वजह से भी हम जीतते हैं तो व्हाट वी से, इंडिया वोन द मैच. डू वी से सचिन वोन द मैच जस्ट बिकॉज ऑफ, ये अपन बोलते हैं, बट सब जगह पहले क्या आता है, इंडिया वोन द मैच. इसकी खुशी ज़्यादा होती है. कैसे? क्या? प्लेस द अनदर रूल. नाउ नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन. प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन मीन्स centralization refer to concentration of power and authority. In some organization, this power is vested in one hand or few hands. Like centralization of, मतलब किसी एक इंसान के हाथ में पावर रहती है या फिर एक से ज़्यादा, दो या तीन. This situation occur in small organization, but if the size of the organization is large, then there is decentralization of power and authority. According to this principle, वहाँ पे प्रॉपर बैलेंस रहना चाहिए सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन. लाइक 2-3 बॉस है, 2-3 जन ने मिलके कंपनी खोली है, तो इसका मतलब ये होता है क्या 2-3 जन हर किसी को ऑर्डर देते बैठेंगे? नो. समवन विल लुक इनटू वन डिपार्टमेंट. इफ देयर इज सम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, समवन विल लुक फॉर द मार्केटिंग एंड अदर वर्क, एंड वन विल लुक एट द साइट. साइट पे क्या चाहिए, क्या नहीं, कैसा काम चल रहा है, समवन विल लुक दैट, राइट. तो क्या होगा? प्रॉपर सेंट्रलाइजेशन होगा. नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन. रेम्यूनरेशन यानी पेमेंट, मतलब प्रॉपर सैलरी, वेजेस जो भी दे रहे हो, इट शुड बी प्रॉपर, इट शुड बी फेयर. नाउ प्रॉपर रेम्यूनरेशन टू द स्टाफ शुड बी गिवन. अभी हर ऑर्गेनाइजेशन में सबको सेम रहेगा क्या? नहीं. सबका रेम्यूनरेशन शुड डिफर फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन. It depends upon the size, it depends upon the on which level do you perform, right. So proper remuneration to the staff or employee is the principle to keep the staff satisfied, as well as we can retain the staff for the long time in the organization. The fair remuneration affects the productivity and efficiency level in total. अगर मुझे पता है कि बाबा मुझे पेमेंट अच्छे से मिल रहा है एंड आई एम सेटिस्फाइड, तो क्या होगा? आई विल वर्क विथ अ गुड मेंटल स्टेट, राइट. मुझे पता है कि मुझे अच्छे से नहीं मिल रहा है, तो मैं बोलूँगी छोड़ना, मुझे जैसे चाहिए वैसे काम करती हूँ, वैसे भी कहाँ ज़्यादा दे रहे हैं मुझे. आई विल गेट दैट फीलिंग, राइट. बट अगर मुझे प्रॉपर फेयर रेम्यूनरेशन मिल रहा है, मैं क्या बोलूँगी? नहीं, ऑर्गेनाइजेशन मुझे अच्छे से पे कर रहा है, तो इवन आई शुड डू अ गुड वर्क, इवन आई शुड कीप देम हैप्पी. तो
द रेम्यूनरेशन शुड बी फिक्स्ड बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द स्किल, द एक्सपर्ट, द नॉलेज, टेंचर, कॉस्ट ऑफ लिविंग, मार्केट ट्रेंड, profitability of the organization, etc. So pay scale should be depend on your expertise, skill, knowledge and all your experience. Okay. Next is principle of scalar chain. Scalar chain means hierarchy of authority. आज मुझे किस किस को रिपोर्ट करना है. See, in a big organization ना, there is an hierarchy. Like on the top there is a A level, top level management, middle level, lower level. अभी लोअर लेवल के डायरेक्ट टॉप लेवल मैनेजमेंट से जाके थोड़ी बात करेगा. डू यू थिंक आर दे परमिटेड डायरेक्टली टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट? नो. इफ द लोअर लेवल मैनेजमेंट हैज़ द प्रॉब्लम, उनका एक मैनेजर रहता है, ही इज सपोज टू सॉल्व द प्रॉब्लम. फिर भी नहीं हो रहा है, ही इज सपोज टू गो टू बी लाइक मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड देन द प्रॉब्लम गोज टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट. यू कैन गो डायरेक्टली टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट. इफ हर छोटी छोटी बात के लिए आप टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास जाओगे तो क्या होगा? मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट बड़े बड़े डिसीजंस लेगा. इट विल टेक गुड बेटर डिसीजंस और इट विल जस्ट सॉल्व योर स्मॉल प्रॉब्लम्स. नो, हिज टॉप लेवल मैनेजमेंट इज नॉट सिटिंग फॉर सॉल्विंग योर स्मॉल इश्यूज, स्मॉल प्रॉब्लम्स, राइट? सो स्केलर चेन मीन्स द हायरार्की ऑफ ऑथोरिटी फ्रॉम टॉप लेवल टू द लोअर लेवल फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन. आपको कुछ भी कम्युनिकेट करना है, यू कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट टू द टॉप लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन. इससे क्या होगा? अगर आप स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो क्या होगा? इट विल हेल्प टू एंश्योर द ऑर्डरली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन. आपका जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी कम्युनिकेशन है, वो प्रॉपरली जाएगा. पहले क्या होता था? ऑर्गेनाइजेशन यूज टू फ्रेम लार्ज स्केलर चेन विच इज टाइम कंज्यूमिंग. पहले ज़माने में क्या था? बहुत बड़ी स्केलर चेन रहती थी और बहुत टाइम कंज्यूमिंग रहता था. एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यू हैव टू गो थ्रू अ लॉन्ग चेन. नाउ व्हाट हैपेंस? नाउ देयर इज अ जनरल मैनेजर. एवरी फील्ड का, एवरी सेक्टर का एक एक मैनेजर उन्होंने बना दिया आजकल बड़ी बड़ी कंपनी में. दे सॉल्व योर प्रॉब्लम्स. फॉर अवॉइडिंग दिस लॉन्गर चेन एंड टू कीप स्पीडी डिसीजन अक्रॉस कम्युनिकेशन और डायरेक्ट कम्युनिकेशन इज फॉलोड बाय वेरियस ऑर्गेनाइजेशन. नाउ नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर. प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर मीन्स दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस. मतलब जो भी है सब कुछ जगह पे ही होगा. हाँ, ह्यूमन रिसोर्स एंड मटेरियल शुड बी इन राइट प्लेस एट राइट टाइम फॉर मैक्सिमम इफिशिएंसी. ह्यूमन रिसोर्सेस यानी क्या? जो हम ह्यूमन बीइंग काम कर रहे हैं ना, वो सही टाइम पे सही जगह पे काम करे तो काम करने में भी मज़ा आएगा. जो भी जिसकी जितनी कैपेबिलिटी, जिसकी जितनी कैपेसिटी है, इट शुड बी यूटिलाइज प्रॉपरली और वे बी एट द राइट टाइम, ऑन द राइट जॉब एंड एट द राइट प्लेस. हाँ, अगर अपन ह्यूमन रिसोर्सेस प्रॉपरली यूज़ करेंगे, सही जगह सही टाइम, इससे क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन को ही बेनिफिट होगा. ऑर्गेनाइजेशन विल वर्क विथ अ प्रॉपर मैनर. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी. प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी. व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी? एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली इन द ऑर्गेनाइजेशन. लाइक देयर शुड बी अ फ्रेंडली एनवायरनमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन. लाइक तुम लोअर लेवल मैनेजमेंट हो, यू कांट कम डायरेक्टली टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट. नो, ऐसा इल ट्रीट नो वन शुड बी ट्रीटेड. Management should be fair as well as friendly to the subordinates. While dividing the work, dedication, proper authority, then deciding the monetary terms, etc., there should not be any discrimination between the employees. आप सेम लेवल पे काम कर रहे हो ना, आपको पेमेंट भी सेम मिलना चाहिए. ऑलमोस्ट यू शुड गेट सेम पेमेंट. It also suggests that the remuneration should not depend on the department but at the level on which the subordinates are working. आप जिस लेवल पे काम कर रहे हो उस लेवल से आपको आपका पेमेंट मिलना चाहिए. लाइक इफ यू आर वर्किंग इन द मिडिल लेवल और आपको पेमेंट लोअर लेवल का दे रहे हैं, देन इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. should get a proper payment. Everyone should be treated equally in the organization. Then principle of stability of tenure. टेंशन मतलब पीरियड. अब मुझे पता है कि मैं 1 साल तक यहाँ पे काम कर रही हूँ, मेरा बॉन्ड साइन हो चुका है फॉर द 1 year. इफ आई वर्क वेल इट वुड बी एक्सटेंडेड, राइट? एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज द मैनेजमेंट शुड एंश्योर देम अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ द टेंशन और जॉब सिक्योरिटी. आपको जॉब सिक्योरिटी कितना है ये मैनेजमेंट आपको पहला बोलना चाहिए.
It plays very important role in creating sense of belongingness to the employees. इससे क्या होता है, एम्प्लॉय को पता है ना मुझे साल भर यहाँ काम करना है, तो क्या करेगा, वो पूरा साल अच्छे से मेहनत करेगा सो दैट ही गेट्स अ फिक्स्ड प्लेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, राइट. अगर मैं उसको कुछ भी पीरियड नहीं बोलूँ, ठीक है टेम्प्रोवरी तू काम कर, वो क्या बोलेगा, ठीक है टेम्प्रोवरी काम मिला है ना, करता हूँ, मुझे मालूम है काम करो नहीं करो, मुझे जब टाइम आएगा तब ये लोग मुझे निकाल देंगे. इफ दैट फीलिंग इज क्रिएटेड देन व्हाट विल हैपन, you won't work properly, you won't put your maximum efforts. So principle of stability of tenure plays a important role. Next is principle of initiative. Initiative refers to volunteering to do the work in an innovative way. You are supposed to do the work in an innovative way. Like आपको नई आइडिया सोचने के लिए आपको फ्रीडम है, राइट. देन आप जो भी सजेशन दोगे, जो भी दोगे, द मैनेजमेंट ट्राइज टू यूज दैट, ट्राइज टू डिस्कस विद द मैनेजर एट डिफरेंट लेवल, जो भी नए आइडियाज़ है. इससे क्या होता है, यू विल हैव सम इनिशिएटिव, इवन यू विल फील हैप्पी कि पापा आज मैनेजमेंट मेरे को डिसीजंस में थोड़ा सा इन्वॉल्व कर रहा है, आज मैं जो भी बोल रहा हूँ इट इज़ टेकिंग अप एज अ सजेशन, इट विल थिंक ऑफ इट, राइट. इनसिक्योरिटी, दिस initiative should be welcomed by the manager including through discussion on those new ideas. तो ये सारे न्यू आइडिया शुड भी डिस्कस करेंगे, तो क्या होगा, इवन एवरीवन वुड बी हैप्पी एंड द ऑर्गेनाइजेशन का जो भी एनवायरनमेंट रहता है ना वो भी हेल्दी रहता है, वो भी हेल्पफुल रहता है. नेक्स्ट लास्ट प्रिंसिपल इज द प्रिंसिपल ऑफ ई स्पिरिट डी क्रॉप्स, मतलब टीम वर्क. जो भी है, आप अकेले सारा गोल अचीव कर सकते हो क्या, नहीं, यू अलोन कांट अचीव एनी गोल. सो टीम वर्क प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल हियर. हाँ, सो हेनरी फ्यूएल ने क्या किया है, टीम वर्क पे बहुत ज़्यादा एम्फोसिस दिया है. ई स्पिरिट डी क्रॉप मीन्स यूनिटी इन स्ट्रेंथ. रनिंग एनी ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप एक्टिविटी एंड ह्यूमन रिसोर्सेज प्लेज अ वैल्यूएबल एसेट इन द ऑर्गेनाइजेशन. अगर आप ह्यूमन रिसोर्सेज को खुश रखोगे तो आपका ऑटोमेटिक प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी सब कुछ बढ़ेगा. इफ ऑल एम्प्लॉयज आर वर्किंग एज अ यूनियन and with mutual trust the difficulties can be solved quickly. अगर आप लोग ऑर्गेनाइजेशन इतने सब लोग रहते हैं उसमें सब लोग मिल बांट के काम करोगे तो क्या होगा, कभी कुछ टास्क आया लास्ट मोमेंट पे आया तो क्या हुआ, यू कैन फिनिश द टास्क फटाफट. इफ सम प्रॉब्लम अराइज व्हाट विल हैपन, यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम क्विकली, राइट. देयरफॉर एज अ लीडर, एज अ मैनेजर, टीम वर्क एंड अंडरस्टैंडिंग द एम्प्लॉयज टू अचीव द गोल इजीली plays a very important role. So these were the 14 principles of Henry Fayol. About Henry Fayol principle are very useful in the organization. This also gives a support to function the management properly. These principles are logical and are based on the modern management era. See, now it is very difficult to remember these 14 principles. एक भी प्रिंसिपल मिस हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी. So there's one formula you can remember, like DAD, DAD, DAD uses Eurosys, UROCIES. See, I will read out it. Like D stand DAD. First we'll do about the DAD, DAD. First D is for division of work. Second A is for authority and responsibility. And next D stands for discipline. Now uses की spelling क्या है, USES. First U stand for unity of command, S stand for subordinate of individual, E stand for equality, S stand for scalar chain. Now Eurosys की spelling UROCIES. U stand for unity of direction, R stands for remuneration, O stands for order, C stands for centralization, I stand for initiative, E stands for E-Spirit D Crops, and S stands for scalar chain. So this is the simple formula to remember all those 14 principles. See, DAD, 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 uses, 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 Eurosys, UROCIES. So this will help you to remember the 14 principles of management. These 14 principles of management are very important from the exam point of view. So study well. In next lecture we will be studying the Taylor's scientific management theory. Thank you.